If you can't watch the full podcast, watch those cast clips to get the best in podcasting in our country. So let us then speak on the behalf of every Hindu in the country. For rather, not on behalf. सारे हिंदू, सारे मुस्लिम, सारे क्रिश्चियन, सारी और माइनॉरिटीज़ को मिला लेते हैं. क्या ये सब लोग हिंदुत्व को एम्ब्रेस कर सकते हैं? देर इज ऑब्वियसली अ फ्यू थिंग्स स्टैंडिंग इन द वे. वन इज सम हिंदूज स्टिल हैव अ गिल्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी शोन एज हार्ड लाइंड राइटीज़, जो एक उनको ऐसा लगता है. सेकंड ये है कि मैं एक मुस्लिम या क्रिश्चियन हूँ, मैं कैसे एम्ब्रेस कर सकता हूँ हिंदुत्व को भाई, क्योंकि मैं तो हिंदू नहीं हूँ. आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी. एंड द थर्ड इज, if by your definition I start embracing Hindutva as it is, I get labeled as almost like someone who's an extremist. So what is the incentive to pick it up? Is there a need of the hour? कि आपने आज मेरे को बोला था कि ओवरऑल देश के अंदर बेसलाइन जो है इट्स गॉन टू हिंदुत्वा. या तो देश की तो बेसलाइन क्लियर है, मतलब दिख नहीं रहा है लोगों को क्या हो रहा है. मतलब इतने तो ब्लाइंड नहीं हो सकते ना लोग कि तुम्हारे अराउंड तुम्हारा डिस्कोर्स. अरे ये छोड़ दो, आज से 7-8 साल पहले तुमको लगता है कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर आती थी? तुमको लगता है नेटफ्लिक्स में कई शोज़ में जो प्रो हिंदू बातें होती हैं वो होती थी? तुमको लगता है कि ये जो OTT में चीज़ें आ रही हैं इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म हो सकता था लेफ़्ट का? हो सकता था, क्योंकि ये एवरीथिंग इज़ डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉलिटिकल पावर बॉस. ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ होता है, मैं नाम नहीं लूँगा जर्नलिस्ट का. हम बात कर रहे थे, बोलता है गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया. मतलब अच्छा, मतलब मैं भी मानता हूँ गोदी मीडिया है, 100% एग्रीमेंट. बड़ा खुश हो गया, लेफ्टी था. बोलता है देखा फिर तू क्यों वोट करता बीजेपी को? मतलब गोदी मीडिया तो 1947 से है, सिर्फ गोदी बदल गई. झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सच है ना. तू भी जानता है बथेरों को, मैं भी जानता हूँ बथेरों को. कॉन्सेप्ट तो गोदी मीडिया एज अ कॉन्सेप्ट ट्रू है, सिर्फ चेंज हुआ है 2014 से 16 जब इनको लगा, और ख़ास तौर पे 19 के बाद जब वापस मोदी जीत गया. तो पीपल रियलाइज कि नहीं, ये तो गोदी अभी रहने वाली है, तो जाओ इस गोदी में बैठ जाते हैं. बट आप वैसे भी बताओ, अपने हिंदुत्व आपने थोड़ा अच्छी तरह से समझाया. मैं एज अ हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज जो देख रही हैं, हम सब इसे एम्ब्रेस कर सकते हैं विदाउट द. ऑब्वियसली यू कैन यार, बिकॉज इट एंड इज. व्हाट डज इट मीन फॉर अस? लाइक हाउ डू वी इनैक्ट इन डे टू डे लाइफ? You just go about living your life. Just you don't have to do anything. You just, Hindutva demands nothing from you. Hindutva just demands respecting your society and your culture. It doesn't mean every aspect of your culture, but that's all. In fact, Hindutva is such a progressive movement. It's against caste discrimination. It's for women empowerment. The only political party in India before this women's reservation passing in the parliament, which was the political party in India that gave 33% or 30% reservations to women in all positions in its political structure? Only BJP did. Did Congress give it? Did the CPIM Marxists give it? Only BJP did. The only political party in its political structure that gives reservation to women in key posts. Only BJP does. So what is your problem? Either then you're a conservative, Dakyanusi Admi, who is against all these things. Like, are you against the idea of equality, which stems from the abolition of caste discrimination? Are you against the idea of women and men being treated equally like human beings? What are you against? I think unlike you, people don't do primary research. That's the main thing. Basic, and if ये तो ऐसा हो गया ना कि now I am obliged to do. See, if you're only, see, first of all, the problem with most people that I see these days is they don't get out of their echo chambers. If you are a BJP voter, the first thing you should do is read Wire and Scroll. That's the first thing you should do. And if you are a left-wing voter, the first thing you should do is read Swarajya. That's the first thing you should do. That's, if you don't do that, then you are a lost cause, boss. You are a lost cause because you don't, then you are just going to stay in those silos and always be the way you are. मतलब फिर तो आप है ना वो हवा का झोंका जिस तरफ जा रहा है उस तरफ चल जाओगे. ये तो एक पॉइंट ये है कि आप अगर द ओनली रीजनेबल क्रिटिसिज्म इज जब कोई बीजेपी का लीडर आता है और मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है या क्रिश्चियंस के खिलाफ बातें करता है, वो क्रिटिसिज्म लेजिटिमेट है और उनको
उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, मगर लेफ्ट में लोग हिंदुइज्म के बारे में बात नहीं करते हैं ऑल द टाइम। तो फिर तो वो कैसे कोशर है? ये तो वही है ना, वो बिग बॉस में वो लेडी ने बोला था ना, थोड़ा कुत्ता तो हम ही साडा कुत्ता कुत्ता। तो मतलब अगर एनेक्डोट की गेम खेलनी है तो एनेक्डोट की गेम तो दोनों साइड खेल सकती है। पॉलिसी की गेम खेलो ना भाई, पॉलिसी की बात करनी है। 2012 में कांग्रेस लाई थी कम्युनल वायलेंस बिल। कम्युनल वायलेंस बिल क्या करता था? बोलता था कोई भी राइट होगा बाय डिफॉल्ट हिंदू दोष में, द मेजॉरिटी इज इन फॉल्ट, राइट? या तो मेजॉरिटी कौन है भाई? मेजॉरिटी हिंदू ही है ना, और तो कोई है नहीं। तो ये यार, तो कम्युनल है कौन? कांग्रेस है कि बीजेपी है? मेरा क्वेश्चन लोगों को ये, अगर आप यू ट्रूली आर फॉर इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स इन इंडिया, यू हैव नो ऑप्शन बट द बीजेपी टुडे। मुझे कुछ नहीं है, मेरे कितने दोस्त हैं जो कांग्रेस वोटर्स हैं, आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं, आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद देम। I don't have to agree with them on everything. I don't even expect the whole country to go to Hindutva. But my point is, ओ यार कोई रेफरेंस पॉइंट तो दे दो। ओ यार तुम तो कहानियां बना रहे हो। तुम मेरे अरे यार दुख, अब मैंने तेरे को ऑफलाइन भी बताया था, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, कितने लेफ्ट विंगर्स मेरी पॉडकास्ट सुनते हैं सीक्रेटली, और फिर मेरे को बोलते अच्छी है। मैंने बोला शेयर कर, तो पागल हो गया, मेरे कैंसिल हो जाना मैं मेरे सर्कल में। मैं तुमको खुला बोलता हूँ, मैं लेफ्ट विंगर को मेरी पॉडकास्ट बुलाऊंगा, मुझे राइट विंग कोई कैंसिल नहीं करेगा। राइट इज फार मोर ओपन देन द लेफ्ट। राइट आपको अलाउ करेगा हेटेरोडॉक्सी, राइट आपको अलाउ, अरे मेरे जैसा आदमी जो खुला बोलता है आई वांट टू एनाइलेट जाति वरना, मेरे जैसा आदमी जो खुला बोलता है कास्टिज्म से घटिया चीज कोई है नहीं, मेरे जैसा आदमी जो खुला अपोज करता है चीजों को, मेरा ट्विटर जाके देख लो, मैं तो आग ही लगाए रखता हूँ। उसके बाद भी मेरी रिस्पेक्ट राइट में थोड़ी ना कम होती है। वो ठीक है, लोग गालियां देने वाले देते हैं, मगर प्यार करने वाले कितने हैं? राइट विंग के अंदर, इंडिया के अंदर दो मैंने कॉन्सेप्ट, जब आपसे, अभिजीत से और 3-4 और आप सब नॉर्समैनों से मुलाकात हुई मेरी, तो मेरे को एक टर्म पता लगा, एक होता है ट्रैड और एक होता है रायता। हाँ I could never for the life of me understand what is the distinction between the two, and why is the Indian right has such a strong fault line running in the middle of it. ट्रैड बेसिकली है जातिवादी कास्टिस्ट, वो सीधा। हाँ वो ओपन है, जातिवादी हैं। तो उनको जो लेफ्ट बोलता है ये अपर कास्ट ब्राह्मण हिंदुत्व है, वो वही है वो हिंदुत्व है ही नहीं, वो हिंदुत्व फ्री राइडर है। अच्छा वो है हिंदुत्व फ्री राइडर। रायता है प्रोग्रेसिव्स, मॉडर्निस्ट, वो what is the रिफॉर्मिस्ट। रायता क्या होता है? आप बेसिकली पीपल हु आर हिंदूज बाय चॉइस, डिवाउट हिंदूज इन माय केस। बाय चॉइस दैट मीन्स दैट जैसे कुछ लोग जो मुस्लिम्स भी हैं वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, देयर कॉल्ड रायता। यस, दे आर नॉट बोर्न अ हिंदू। तो क्या हो गया, मगर हिंदू बाय कल्चर है। तो रायता इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी हिंदू है। रायता इज अ हिंदी वर्ड, आप लोग यूज करते हो इसको? यार ये ट्रैड्स ने वर्ड इन्वेंट किया था, अच्छा रायता। तो मैं बोला अच्छा रायता तो टेस्टी है, बूंदी रायता, पाइनएप्पल रायता। आपने ट्रांसफॉर्मर्स देखी है? नहीं। वो पिक्चर होती है इसमें सारे रोबोट्स होते हैं, हाँ वो गाड़ी रोबोट बन जाती है, रोबोट गाड़ी है ना, बन जाती है। ऑटोबॉट्स, डिसेप्टिकॉन्स, एक अच्छे होते हैं एक बुरे होते हैं। हाँ, क्या है मतलब ये, इज देयर नो लाइक there is no comparison. Anybody who believes in the birth-based caste system and who believes that just because they are born in a certain caste they are inferior are wrong. that's the only difference between raita and trads? Many other differences. Like what? I mean, I think, but the primary difference is on the caste issue, and उसके आगे हम जा नहीं पा रहे हैं। सेकंड झगड़े तक अभी हम तो पहुंचे नहीं है, अभी तो इसमें ही झगड़ा कर रहे हैं। What else? Are they more, is raita more like willing to entertain other sides? Is Yeah. जैसे एक चीज होती है, there is always this idea of like taking us back to our civilizational past. For the life of me, I don't understand what it means. Like, what do you mean by going to the past and restoring our glory? उसका मतलब क्या होता है exactly? कुछ नहीं होता, ऐसे बोल लेते रहते लोग। सिर्फ बोल देते हैं। बोलना होता है फील गुड के लिए। There is, because it's like saying कि हमारा civilization past की glory कहाँ है? कितने साल पुरानी glory? कौन सी glory? नहीं, और कहाँ तक पीछे जाओगे? जैसे आनंद रंगनाथन हमेशा बोलता है ना, आई एम द एंसेस्टर ऑफ लूसी। What is that? फर्स्ट, तुम्हारा फर्स्ट जो लूसी है, जहाँ से अफ्रीका से तुम अगर चालू करोगे वहाँ से लेकर यहाँ तक, आई एम द एंसेस्टर ऑफ लूसी। तो तुम्हारी एंसेस्ट्री तुम कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? वो इट्स जस्ट अ कन्वीनियंट लाइन, तुम 7,000-8,000 साल पे रोक देते हो। 70,000 साल पहले इधर फर्स्ट ह्यूमंस आए थे ना, तो वो तुम्हारा एंसेस्टर कहाँ है? वो नहीं है तुम्हारा एंसेस्टर। ये सब इमेजिनरी लाइन्स हमने क्रिएट की हुई है। ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे हाउ फार डू यू वांट इट टू गो, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
इट्स ऑल अबाउट दैट. पॉइंट ये है कि रायता इज ओपन टू आइडियाज फ्रॉम इवन नॉन हिंदू कल्चर्स. Really? यस. सो अगर आज वेस्टर्न कल्चर में कुछ अच्छा आइडिया आएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वेस्ट तुमको कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है तुमको नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए ना. कल को अरब कल्चर तुमको कोई अच्छी चीज़ सिखाएगा, लेनी नहीं चाहिए? लेनी चाहिए ना. तो रायता बोलता है भाई सबसे लो. रायता वही है ना. रायता का फंक्शन क्या है? सबको बनाओ और खा लो. ये रायता है. ट्रैड बोलता है नहीं मेरे एंसेस्टर्स के पास सारे आंसर थे. अच्छा, तो फिर तेरी किताबों में डायनासोर क्यों नहीं बताया? कोई भी तेरी रिलीजियस बुक में डायनासोर नहीं है. अगर सब कुछ पता था तो क्यों नहीं बताया? If you like this clip, I bet you will love the full podcast. Check it out on the Dostcast YouTube channel.